Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, from today, we will start a new chapter of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, that is, chapter of arrest. And in this first part, we will discuss section 35, which specifically deals with when police may arrest without warrant. कि पुलिस अक्यूज्ड को कब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ये सेक्शन 35 ही आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, हम सेक्शन 35 डिस्कस करते हैं, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट warrant. So first of all, we will discuss introduction relating to the arrest. Arrest means taking the body of person into custody. So whenever police take the body of accused into custody, it means the arrest is completed. So it means preventing a person to move out of the custody of police. If police is preventing a person to move out of their custody, it is called arrest. अगर पुलिस किसी पर्सन को इस तरीके से उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है कि वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सक रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसको अरेस्ट हो चुका है। या पुलिस अगर अपने पोजीशन में अगर किसी पर्सन को ले रही है, कस्टडी में ले रही है, तो वो अरेस्ट कंप्लीट हो गया, ऐसा हम मान सकते हैं। दिस डजंट मीन दैट द पर्सन मस्ट बी टाइड। अरेस्ट डजंट मीन दैट द पर्सन मस्ट बी टाइड. Even the arrest can be completed without touching the body of accused person. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अरेस्ट का मतलब ये है कि किसी पर्सन को हथकड़ी पहनाए तभी वो अरेस्ट होगा, या किसी पर्सन को रस्सी से बांधे तभी वो अरेस्ट होगा। कभी कभी पर्सन के बॉडी को टच किए बिना भी अरेस्ट हो सकता है। अगर पुलिस कहे यू आर अंडर अरेस्ट और अगर अक्यूज्ड अपने आप को पुलिस के कस्टडी में सौंप दे, तो उस सिचुएशन में अरेस्ट कंप्लीट हो गया। पुलिस उसके बॉडी को टच भी नहीं करेगी तब भी अरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट किसी भी तरीके से अगर पुलिस किसी पर्सन के लिबर्टी को कर्टेल कर रहा है या उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सेक्शन 35 की तरफ बढ़ते हैं कि सेक्शन 35 से अरेस्ट का चैप्टर शुरू होता है और सेक्शन 35 डील होता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस कब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है? देखिए, any police officer may without warrant arrest any person who commits in the presence of a police officer a cognizable offense. So whenever any accused has committed a cognizable offense in presence of a police officer is having a very power to arrest that person without warrant. तो अगर कोई accused पुलिस के प्रेजेंस में अगर cognizable offense करता है, दखल पात्र गुना करता है, जनरली cognizable offense 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट है तो वो जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक्सेप्शंस में भी देयर। तो अगर पुलिस के प्रेजेंस में कोई अक्यूज कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ये पहला सिनारियो है, सेक्शन 35 सब क्लॉज 1A। तो पुलिस के प्रेजेंस में कोई अक्यूज कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा, पुलिस इज हैविंग अ वेरी पावर टू अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 35 सब क्लॉज 1B. Any police officer may without warrant arrest any person against whom a reasonable complaint has been made, a credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following condition are satisfied. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 35 सब क्लॉज 1B deals with if any police officer receives any credible information relating to the commission of offense, if a magistrate receives any complaint or on the basis of a reasonable suspicion that any person has committed such an offense, such a cognizable offense in which the punishment is up to 7 years, less than 7 years or which may extend to 7 years. So under such a circumstances, if the following condition are satisfied. अब बात ध्यान में रखिए, जितना अभी स्लाइड पे देख रहे हो आप, इसमें क्या है कि पुलिस कब किसी पर्सन को विदाउट अरेस्ट कर सकती है? ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट आई है या जिसके अगेंस्ट में पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन आई है या पुलिस को खुद को डाउट है कि वो पर्सन ने जिसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन आई है या पुलिस को डाउट है या कंप्लेंट आई है, उस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में सजा 7 साल से कम या 7 साल तक की है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा
कि अगर कुछ फॉलोइंग कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है? देखिए, कंडीशन फर्स्ट है कि द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव on the basis of such a complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense. देखिए, अगर उस इंफॉर्मेशन के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को यह लग रहा है कि ये पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और उसमें सजा 7 साल तक की है, तो पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली वो सही है, तो उस सिचुएशन में विदाउट वारंट पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। देखिए, दूसरी कंडीशन है द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया कि वो अरेस्ट जरूरी है। क्यों जरूरी है? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। पुलिस को यह लग रहा है कि अगर हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये और कोई ऑफेंस कर सकता है। टू प्रिवेंट सच अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि हमको इसको अरेस्ट करना जरूरी है, अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये और कोई ऑफेंस कर सकता है। अगर पुलिस को ऐसा लगे तो पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कौन से पर्सन को? जिसने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें सजा 7 साल तक की है। सेकंड सिनेरियो, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। पुलिस को यह लग रहा है कि अगर हम इसको अरेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो सकती है, और अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं होगी, तो इस बेस पर भी पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। थर्ड वन इज टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विथ सच एविडेंस इन एनी मैनर। पुलिस को यह लग रहा है कि अगर हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा? एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा, टेम्पर करेगा एविडेंस को, है ना? तो इसलिए इसकी अरेस्ट जरूरी है। पुलिस को ऐसा लगा, पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट सच अ पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस so as to dissuade him from disclosing such a fact to the court as to the police officer or to the police officer। देखिए, अब पुलिस को यह लग रहा है कि अगर हम इस अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये क्या कर सकता है? ये विटनेस को डरा सकता है, धमका सकता है, या कुछ प्रॉमिस कर सकता है जिसके चलते वो विटनेस को वो कहने से रोकेगा जो सच्चाई है। ठीक है? तो अगर ऐसा भी लग रहा है कि विटनेस को डराएगा, धमकाएगा, पुलिस इस ग्राउंड पे भी उसको अरेस्ट कर सकती है। बात हो रही है अपनी सब क्लॉज बी की, बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 35 सब क्लॉज 1B। इसमें क्या कहा जा रहा है? अगर अक्यूज्ड ऐसा ऑफेंस करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें 7 साल तक की सजा है, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है ये ग्राउंड्स पर। ठीक है? अब एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। अगर पुलिस को यह लग रहा है कि अगर हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसको कोर्ट में प्रॉपर टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। As unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured। या पुलिस को यह लग रहा है कि अगर हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसकी कोर्ट में प्रेजेंसी प्रॉपर टाइम पे नहीं हो सकती है, जब बुलाए तब ये नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे कस्टडी में रहेगा तो जब कभी भी कोर्ट बुलाएंगे, कोर्ट में उसको बुलाया जाएगा, हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बुनियाद पर भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। देखिए, एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग। अगर 7 साल तक की पनिशमेंट किया वाला कोई पनिशमेंट वाला ऑफेंस किसी पर्सन ने किया, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, और पुलिस उसको इस ग्राउंड पे जो अभी हमने डिस्कस किया अरेस्ट करना चाहती है, तो पुलिस को स्पेसिफिकली रीजन देना पड़ेगा कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है? देन provided that a police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of this subsection record the reason in writing for not making the arrest। और अगर पुलिस को ये सारे सिनेरियो को देखने के बाद, कंसिडर करने के बाद, अगर पुलिस को लग रहा है कि ना तो ये किसी को डराएगा, धमकाएगा, ना तो ये भागेगा, ना तो कोई और ऑफेंस करेगा, किसी भी तरीके का नहीं, और पुलिस को लगता है कि इसकी अरेस्ट जरूरी नहीं है, तब भी पुलिस को राइटिंग में रीजन देना पड़ेगा कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। ये सेक्शन 35 सब क्लॉज 1B हमने डिस्कस किया। नाउ सेक्शन 35 सब क्लॉज 1C, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम। देखिए, अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड दैट
he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of the information that such person has committed the said offense. When police may arrest without warrant, that if any complaint has been received against any person that accused person has committed a cognizable offense for which the punishment is more than 7 years or up to death penalty is there, and the police is having reason to believe that he has committed an offense, under such a circumstances police can arrest that person without warrant. सब क्लॉज सी देखिए, सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 का सी क्या कह रहा है कि ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें 7 साल से ज्यादा सजा है और अप टू डेथ पेनाल्टी है, और पुलिस को यह लग रहा है कि यह ऑफेंस उसने किया है, तो पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 सी. नाउ सेक्शन 35 सब क्लॉज डी, any police officer may without warrant arrest any person, a person who has been proclaimed offender. So police is having a very power to arrest any person who has been declared by a competent court of law as a proclaimed offender. कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कोर्ट ने किसी अक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, जैसा कि वांटेड बोलते हैं हम उसको, भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है. सेक्शन 35(1)(d) के हिसाब से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी. सपोज if the police found a stolen property in the possession of any person, police is having a very power to arrest that person without warrant. So अगर चोरी का माल किसी भी पर्सन के पोजीशन में मिलेगा तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी ये प्रिजम्पशन है कि व्हेनेवर द स्टोलन गुड्स फाउंड इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, द प्रिजम्पशन इज दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, he has committed the offense of theft or he was having an information relating to the stolen character of that particular property. कि उस पर्सन को या किसी के पर्सन के पोजीशन में अगर चोरी का माल मिलता है तो प्रिजम्पशन बीएसए में क्या है कि उसी ने चोरी की है या उसको ये पता था कि ये चोरी का माल है और वो पता होते हुए उसने अपने पास रखा है, ये प्रिजम्पशन है. तो यहां पर सिंपल चीज है कि अगर मेरे पोजीशन में चोरी का माल मिलेगा, सेक्शन 35 सब क्लॉज 1(e) के हिसाब से मुझे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट वन इज एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody. So the police officer is having a very power to arrest any person who obstruct a police officer while he is executing his ऑफिशियल ड्यूटी. अगर पुलिस अपनी ड्यूटी कर रहा है और अगर कोई उसको उसकी ड्यूटी में बाधा ला रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, ऐसे पर्सन को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर वो प्रीमाइसेस सर्च करने के लिए पुलिस ऑफिसर आया और उसके पास सर्च वारंट है, तो जो भी प्रीमाइसेस को उसको सर्च करना है तो उसके ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपॉर्चुनिटी दे उस प्रीमाइसेस को सर्च करने की. अगर वो उसका रास्ता रोकेगा तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके ऑफिशियल ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है. तो ऑफिशियल ड्यूटी में अड़थड़ा कोई क्रिएट करता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, या कोई भागने की कोशिश करेगा, एस्केप होने की कोशिश करेगा, या एस्केप होने में किसी की मदद करेगा, तो ऐसे पर्सन को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर. ठीक है. सेक्शन 35 सब क्लॉज 1(g), एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, a person being a deserter from any of the armed forces. तो पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है जो आर्म फोर्स से डिजर्टर है, भाग के आया है, भगोड़ा है वहां से, आर्म फोर्सेस में से भाग कर आए वाले को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस ऑफिसर. नेक्स्ट वन इज सेक्शन 35 सब क्लॉज 1(h). देखिए, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न इन or against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists of
his having been concerned in any act committed at any place out of India, which if committed in India would have been punishable as an offense, which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India. तो बात ध्यान में रखिए कि ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है या एफआईआर हुई है या सस्पिशन है कि उस पर्सन ने ऐसा एक ऑफेंस किया जो आउटसाइड इंडिया किया, इंडिया में ऑफेंस नहीं किया, आउटसाइड इंडिया किया, और अगर वही एक्ट इंडिया में करता तो वो ऑफेंस होता, और जिस कंट्री में उसने जाके ऑफेंस किया उसके साथ अगर एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर भले ही वो फॉर एग्जांपल दूसरे कंट्री में ऑफेंस करके इंडिया में आ गया तो इंडिया में पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट करके उस कंट्री को उसको एक्स्ट्राडिशन के तहत सौंप सकती है। तो बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 35 सब क्लॉज 1H क्या कह रहा है कि ऑफेंस इंडिया में नहीं किया, अक्यूज ने ऑफेंस किया कोई और कंट्री में, और वही सेम एक्ट अगर इंडिया में करता तो ऑफेंस है। तो उस सिचुएशन में अगर वो दूसरे कंट्री में ऑफेंस करके इंडिया में आता है तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो कंट्री में और हम में एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है, हम उसको अरेस्ट करके उनको सौंप सकते हैं। सेक्शन 35 सब क्लॉज 1H। नाउ सेक्शन 35 सब क्लॉज 1I, ऐसे पर्सन को पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 394। देखिए अब यहां पर वही सिचुएशन है कि अगर कोई 394 में अगर देखिए 394 है, रिलीज्ड कन्विक्ट है और उसने अगर ब्रीच किया सेक्शन 394 के प्रोविजन का, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऐसे पर्सन को रिलीज्ड कन्विक्ट है, कन्विक्ट तो रिलीज हो गया लेकिन वो रूल का ब्रीच करता है सेक्शन 394 के, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। सब क्लॉज J, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन whether written or oral has been received from another police station, कि पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, ऐसे पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है जिसके लिए दूसरे पुलिस स्टेशन से रिक्विजिशन आया है कि इसको हमारे पुलिस स्टेशन में इसकी जरूरत है। तो अंडर सच अ सिनेरियो आल्सो द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट। ये अभी तक हमने सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने वाले सेक्शन 35 सब क्लॉज 2। Section 35 subclause 2 deals with subject to the provision of section 39, no person concerned in a non-cognizable offense shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। देखिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, सेक्शन 39 के प्रोविजन को छोड़कर और किसी ऑफेंस में अगर और किसी सेक्शन में अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है पर्सन तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो सेक्शन 39 के प्रोविजन को छोड़कर बाकी कभी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 39 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो कब कि अगर अक्यूज ने पुलिस के प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और पुलिस उसको उसका पता और नाम पूछ रही है और वो बता नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है। अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। सेक्शन 35 सब क्लॉज 2 ये कहता है। सेक्शन 35 सब क्लॉज 3, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस एज he has committed a cognizable offense। देखिए जब अगर अरेस्ट नहीं किया, हमने देखे ना कि अरेस्ट कब कर सकता है, अगर अरेस्ट नहीं किया फॉर एग्जांपल सब क्लॉज 1 के तहत उसको अरेस्ट नहीं हुई तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उसको एक नोटिस इशू करेगा और वो नोटिस में ये कहेगा कि यू हैव टू रिमेन प्रेजेंट बिफोर द पुलिस स्टेशन। वो पुलिस स्टेशन में उसको बुला सकता है, अरेस्ट नहीं करेगा लेकिन पुलिस स्टेशन में उसको बुला सकता है पूछताछ के लिए। देखिए सब क्लॉज 4 डील्स विथ वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। जब कभी भी किसी पर्सन को नोटिस मिलेगी तो उस नोटिस का कंप्लाई करने की उसकी ड्यूटी है। देखिए हमने देखा कि सेक्शन 35 सब क्लॉज 1B में यह कहा गया है कि 7 साल तक की पनिशमेंट वाला ऑफेंस है और पुलिस को यह लग रहा है कि वो ना तो विटनेस को डराएगा धमकाएगा, कहीं भागेगा नहीं या कोई और ऑफेंस करेगा नहीं, तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ उसको एक नोटिस इशू करेगा सब क्लॉज 3 में कि
तुमको ये पुलिस स्टेशन में आना है और वो उसकी ड्यूटी रहेगी, वो पुलिस स्टेशन में उसको आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो पुलिस उसको फिर अरेस्ट कर सकती है, पूरा पुलिस को पावर है। वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस he shall not be arrested in respect of the offense referred to in the notice unless for reason to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। अगर वो नोटिस का कंप्लाई कर रहा है, उसको नोटिस भेजो और वो अगर अक्यूज्ड आ गया तो उसको अरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। फिर भी अगर पुलिस को अरेस्ट करना है तो उनको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है। ये सेक्शन 35 है। अब सेक्शन 35 सब क्लॉज 6 डील्स विद वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offense mentioned in the notice। Suppose if the later on if the accused fails to comply with the terms of the notice, अगर वो नोटिस के हिसाब से अगर आगे नहीं चलता है तो उस सिचुएशन में पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। पूरे पुलिस को पावर है। सेक्शन 35 सब क्लॉज 7 नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 years एंड सच पर्सन इज इनफर्म और इज अबव 60 years of age। So if a person who has committed an offense and if the punishment for that offense is up to 3 years and if the person who has committed the offense is infirm or the person who has committed the offense is above 60 years of age, then such person cannot be arrested by the police officer until and unless the permission obtained from the डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट डीवाईएसपी से जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक उसको अरेस्ट नहीं करेगा। कौन से पर्सन को? ऐसा पर्सन जिसने ऑफेंस किया जिसकी सजा 3 साल तक की है, या ऐसा पर्सन जिसने ऑफेंस किया जो इनफर्म है या 60 ईयर्स से अबो एज है अक्यूज की। तो उस सिचुएशन में डीवाईएसपी की परमिशन पहले लेना पड़ेगी और उसके बाद ही उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो डीवाईएसपी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और कंडक्ट करने के बाद परमिशन देगा। डीवाईएसपी को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 डेज के अंदर कंडक्ट करना पड़ेगा, ये रूल्स है, ठीक है। तो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के परमिशन के बगैर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। 3 साल तक की पनिशमेंट, इनफर्म और अबो 60 years ऑफ एज अगर अक्यूज्ड है तो ये था सेक्शन 35। थोड़ा लेंदी सेक्शन था जो मैंने ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।